नमस्कार। আজি আমি উপস্থিত আছোঁ আৰ্ট অফ লিভিঙৰ এখন আশ্ৰমত। আশ্ৰমটো ক'ত আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক ক'ম, আৰু আৰ্ট অফ লিভিং কি হয়, আৰ্ট অফ লিভিঙৰ স্বামীজী বা গুৰুজীৰ লগত গোটেই কথা বাৰ্তা আপোনাৰ লগত পতাই দিম। আপোনালোকে বিভিন্ন কথা ইয়াৰ পৰা জানিব পাৰিব যে আৰ্ট অফ লিভিং কিহৰ কাৰণে মানুহৰ অতি দৰকাৰী। তো আৰ্ট অফ লিভিঙৰ আজি য'ত আমি অৱস্থিত আছোঁ এইটো হৈছে বগৰীবাৰীত অৱস্থিত এখন আশ্ৰম। বিলাসীপাৰাৰ পৰা আপুনি যদি 10 কিলোমিটাৰ পশ্চিমৰ পিনে আহে তেনেহ'লে এইখন চেণ্টাৰ পাব। আমি গেটৰ পিনে পোনে পোনে যাম। তো আৰ্ট অফ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক মই কৈ ল'ব বিচাৰোঁ যে আৰ্ট অফ লিভিং কিন্তু কোনো জাতি কোনো ধৰ্ম সন্নিৱিষ্ট নকৰে। আপুনি হিন্দু হওক, আপুনি মুছলিম হওক, আপুনি খ্ৰীষ্টান হওক, আপুনি জৈন হওক, যিকোনো ধৰ্মৰ মানুহে আৰ্ট অফ লিভিঙৰ লগত কিন্তু নিজকে সন্নিৱিষ্ট কৰিব পাৰে। আৰ্ট অফ লিভিং মানে বুজায় আপুনি নিজকে কেনেকৈ মেণ্টেলি ছেটিছফাইড কৰিব, নিজকে কেনেকৈ হেপী ৰাখিব, নিজকে কেনেকৈ সুখী কৰিব, সেইটোৱে আৰ্ট অফ লিভিং বুজাইছে। মানুহ যেতিয়া জন্ম হয়, যেতিয়া আপোনাৰ বাৰ্থ হৈছিলে, আপোনাৰ এটা হিউমেন ৰাইটছ যেনেকৈ থাকে ঠিক তেনেধৰণে আপোনাৰ বাৰ্থ ৰাইটছ থাকে। প্ৰত্যেকজন মানুহৰ এটা বাৰ্থ ৰাইটছ থাকে, সেইটো হৈছে হেপিনেছ। আজিকালি আৰ্ট অফ লিভিঙৰ আপুনি টোটেল যদি চেণ্টাৰৰ কথা কয় তেনেহ'লে 170টা কাণ্ট্ৰিত আৰ্ট অফ লিভিঙৰ কিন্তু আশ্ৰম আছে। ভাবিলে আচৰিত নালাগেনে? তাৰে ভিতৰত কিন্তু এখন বগৰীবাৰীত অৱস্থিত এখন চেণ্টাৰ, খুব ধুনীয়া লোকেশ্যনত অৱস্থিত। আৰ্ট অফ লিভিঙত অহাৰ লগে লগে কি হয়, আপুনি নিজকে হেপী কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ চাওক, আজিকালি ব্যস্ত জীৱনত মানুহে নিজকে সময় দিব নোৱাৰে। ভিজিট কৰে, বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰত যায়, তেনেহ'লে দেখা পাব আজিকালি কি হৈছে, হেপিনেছৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট বা মিনিষ্ট্ৰিও কিন্তু খোলা হৈছে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কিন্তু তেনেকুৱা সুবিধা নাই। ভাৰতত যেনেকুৱা আপুনি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, ৰেলৱে মিনিষ্ট্ৰি আছে, তেনেকুৱা বিভিন্ন মিনিষ্ট্ৰি আছে। কিন্তু আপুনি যদি বেলেগ কাণ্ট্ৰিত যায়, বেলেগ কাণ্ট্ৰিত আজিকালি কি হৈছে, হেপিনেছৰ মিনিষ্ট্ৰি হৈছে। ডেট মিনছ হেপিনেছ বস্তুটো কিমানে জৰুৰী মানুহৰ আপুনি ভাবিলে আমাৰ আচৰিত লাগে। আমি পইচাৰ পিনে দৌৰি আছোঁ, বিলিনিয়াৰ মানুহ আছে, কিন্তু হেপিনেছ নাই। তো এই হেপিনেছ আপোনালোকে দিব পাৰিব একমাত্ৰ কিন্তু আৰ্ট অফ লিভিঙে। এতিয়া মই আৰ্ট অফ লিভিঙৰ ভিতৰৰ দৃশ্যখিনি দেখাম আৰু গুৰুজীৰ লগত বিভিন্ন কথা আলোচনা কৰিম। চেণ্টাৰৰ ভিতৰলৈ সোমাম, আশ্ৰমৰ ভিতৰলৈ সোমাম, তাৰপিছত মই গোটেই দৃশ্যখিনি দেখাম। আমি এনেকৈও সোমাব পাৰি আৰ্ট অফ লিভিঙৰ একদম ভিতৰৰ দৃশ্যখিনি মই দেখাম আপোনালোকক। লাহে লাহে পোনে পোনে আগবাঢ়ি আহি আছোঁ, একদম লাহে লাহে আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম, গোটেই দৃশ্যখিনি দেখাম আপোনালোকক। শান্তিত আশ্ৰম বুলি লাভ কৰিম, গোটেইখিনি দেখাম। गुरुजी को पहले नमस्कार करना चाहूँगा। आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में पहले मैं व्यूअर्स को कुछ बताना चाहूँगा, इसका कंसेप्ट के बारे में कुछ बताइए। देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब आप सभी सिंपल जानते हैं, जीवन जीने की कला। जैसे हम कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो उसका ड्राइविंग सीखना पड़ता है। जी जी जी। कुछ भी खाना बनाना होता है, उसको भी स्किल सीखना होता है। तो इतनी बड़ी जीवन है, जन्म से लेके मृत्यु तक हम अप्स डाउन्स रहती है, सुख दुख रहती है, अपोजिट सिचुएशन हमको फेस करना पड़ता है। तो ये दोनों परिस्थिति में हम कैसे बैलेंस बनाए रखें, वही आर्ट ऑफ लिविंग है।
है ना। तो जिसमें हम कभी सक्सेस आया, कभी फेल्योर आया, ये दोनों परिस्थिति में हम हमारे सेंटर से ना हिल जाएं, जी क्योंकि आज के डेट में सबसे जो समस्या है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। अगर फेल्योर आ जाता है तो हम बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखिए, बोलते हैं फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। एक बार हमारी कुछ फेल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। तो वो समय में अपने आप को धैर्य के साथ और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जीवन को एक होप रख के आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। जी तो आर्ट ऑफ लिविंग यही सिखाती है कि जो परिस्थिति जैसा है उसको वैसे स्वीकार करें, जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसे स्वीकार करें, क्योंकि हम किसी को बदल नहीं सकते, जी ना परिस्थिति ना व्यक्ति। हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो यही आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है। और हमारी जो टीचिंग है वो कोई धर्म से संबंधित नहीं है। कोई भी धर्म कर सकते हैं आप। हाँ, जो श्वास लेते हैं वो आर्ट ऑफ जी। लिविंग कर सकते हैं। जी 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 जो भी श्वास लेते हैं, जी। चाहे वो कोई भी विचारधारा को मानते हो, कोई भी धर्म को हो, जो श्वास लेते हैं वो आर्ट ऑफ लिविंग कर सकते कर सकते हैं। हैं। और इसमें हम सुदर्शन क्रिया, जो हमारा कोर कंपोनेंट है, वो सुदर्शन क्रिया है, जो एक पावरफुल रिदमिक ब्रीथ टेक्निक है, ब्रीदिंग टेक्निक है, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है। वो 18 साल से लेकर के जी। 80 साल के उम्र तक कोई भी कर सकते हैं। और उसके लिए इतना ज़्यादा कुछ ये नहीं कि ऐसे फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, आराम से बैठ के भी कर सकते हैं। जी जी। और वो हमारा जो वर्कशॉप होता है, आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम होती है, जो बिगिनर्स लेवल प्रोग्राम है, वो 3 दिन में भी होती है, 4 दिन में भी होती है, 6 दिन में भी होती है। आपके अवेलेबिलिटी के हिसाब से दिन में 2 से 2.5 घंटे का शिविर रहती है। तो आप जो भी शहर में हैं, जी जी आपका नियरेस्ट सेंटर, हमारा जो वेबसाइट है www.artofliving.org, जी जी उसमें आप सर्च करके आप आपका लोकेशन डाल के आप देख सकते हैं वहाँ पे नियरेस्ट सेंटर क्या है। और आज के डेट में सबसे बढ़िया है, ऑनलाइन में ये प्रोग्राम होती है। ऑनलाइन में भी होती है। तो आप अच्छा, अपने अच्छा। घर में बैठ बैठ के के कर सकते घर में बैठ के ये प्रोग्राम हमारा वेबसाइट से कब हो रहा है उसी में रजिस्टर करके आप कर सकते हैं। सबसे बढ़िया है। आजकल क्या होता है गुरुजी, दिखाई देता है कि लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम का सामना करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। और लोगों को तो लाइफ में प्रॉब्लम आती है, कभी ना कभी प्रॉब्लम आती है, लेकिन उस प्रॉब्लम का सलूशन पाने में पूरा ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं कोई लोग। ज़्यादातर Yes. दिखाई देते हैं स्टूडेंट में। कोई एग्ज़ाम में मान लीजिए फेल हो गया, वो खुद को मतलब वो रेवलेशन नहीं ला पाते हैं कि मैं खुद पहला स्टेज में चले जाऊँ। तो उसको मेडिटेशन के थ्रू या आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू वो चेंज कर सकते हैं ना खुद को। बिल्कुल कर सकते जी। हैं। और ये मैं आपको एक रिसर्च बताता हूँ। लास्ट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुआ, जी 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 इवन 2019-20 मेडिकल एंट्रेंस जो होती जी, है जी, जी। है ना, तो इसमें और जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं, जी 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 जो लोग आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स करके हम्म, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, जी जी उनमें यही फर्क पाया जाता है। सक्सेस मिला तो बहुत बढ़िया, अच्छा लेकिन जिन लोगों को सक्सेस नहीं मिला वो लोग और बेहतरीन कर सकते हैं। तैयारी ये सोचते हैं कि ठीक है, सक्सेस नहीं मिला, कुछ कमी रहा, जी कुछ सीख लेके फिर नेक्स्ट ईयर के लिए वो और अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। जी 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 तो वो फ़र्क है। जो आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स किए हैं वो लोग जब कोई भी, जैसे आप सोचिए, देखे होंगे हमारा श्रीलंकन जो क्रिकेट टीम है, वो सारे क्रिकेटर्स आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स किए। अच्छा। इवन इंडियन क्रिकेट टीम में भी हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स, महेंद्र सिंह धोनी से लेके जी 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 विराट कोहली से लेके युवराज सिंह, जो आपको शायद पता होगा, जी जी उनके जीवन का जो सबसे टफ मोस्ट जो था, वो कैंसर से पीड़ित थे। वो समय वो उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स किया। और आपको पता है जब जीवन में कोई ऐसे घड़ी में बीतते हैं, उनका कितना मेंटल इम्बैलेंस होती है। जी जी तो उन्होंने, उनका प्रॉपर एक इंटरव्यू भी है आर्ट ऑफ लिविंग में गुरुदेव के साथ। उन्होंने वो बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स करने के वजह से ही वो अपने अंदर वो स्ट्रेंथ ले और एक होप लाए कि हाँ मैं भी जी सकता हूँ, मैं भी आगे। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर ये आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स करें, जिनके लिए हमारा यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम एक है और एक है यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार प्लस, जी
ES प्लस हम वर्कशॉप बोलते हैं, तो वो लोग अगर ये प्रोग्राम करें तो उनके लिए सबसे बड़ी बात होगी जो लाइफ में फेल्यूर को कैसे वो लोग मैनेज करें, जी उस समय कैसे पॉजिटिव स्पिरिट रखें, जी ये आर्ट ऑफ लिविंग वर्कशॉप से जी, जी। उनको वो फायदा हो। जी सलाह देते हैं कि ऐसा हो रहा है, आप फेल हो जाओगे, ऐसा हो रहा है, पैसा चल रहा है, इसको नेगेटिविटी से कैसे मतलब बच सकते हैं, ये स्टूडेंट के बीच में ज़्यादा दिखाई देता है। देखिए, माइंड का एक टेंडेंसी है, बिल्कुल। माइंड का टेंडेंसी है वो नेगेटिव थॉट जो है ना जी। उसी में अटक जाता है। जी आप किसी को 10 कम्प्लीमेंट्स दीजिए, जी वो याद नहीं रखता मन। अगर उनको एक इंसल्ट आ गया ना, एक बुरी बात बोल दिए, नेगेटिव रिमार्क्स आ गया, तो माइंड उसको ही पकड़ लेता है। ये मन का स्वभाव है, जी जी है ना। जी तो आर्ट ऑफ लिविंग यही सिखाती है कि चाहे वो सक्सेस हो, चाहे फेल्योर हो, चाहे वो प्रेज हो, चाहे वो आपको कोई निंदा करे, ब्लेम करे, ये दोनों परिस्थिति में आप सेंटर्ड रहना, दोनों परिस्थिति में सेंटर्ड रहना, ये दोनों ये परिस्थिति बहुत में सक्सेस फेल्योर को एक ही जैसा मानना, जी जी नहीं कि सक्सेस में ज्यादा एक्साइटेड हो गए हाँ। और फेल्योर में ज्यादा आप पूरा डाउन हो गए, ऐसे नहीं। सेंटर्ड रहना, ये आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है। अच्छा अच्छा। और बाहर की परिस्थिति कैसे भी हो, जैसे आप अगर एक एग्जाम्पल देखेंगे, कोई भी एक डॉगी के ऊपर अगर आप कोई धूल फेंक दें, वो क्या करते हैं, वो धूल को झाड़ के आगे निकलते हैं। निकलते हैं। तो हमको ऐसे ही एटीट्यूड में जीवन को जीना है। लोग हमको प्रशंसा करेंगे, निंदा करेंगे, लोग बोलेंगे तू बेवकूफ है, नालायक है। लोगों के विचार के हिसाब से हम हमारा हैप्पीनेस को, हम खुश हो या हम दुखी हो, ये डिसाइड नहीं होंगे। जैसे एक टीवी का कोई चॉइस ही नहीं होता। जिसके पास वो रिमोट होता है वो जो चैनल देखना चाहे वही चैनल दिखता है। जी जी। तो अगर भगवान ने हमको विवेक दिया, अगर हम खुद एक टीवी बन गए, कोई चाहे हमको गुस्सा दिलाने वो बटन दबाए हम गुस्से हो जाए, कोई चाहे हमको हंसाने वो हंसाए, तो वो फिर हमारा विवेक का कोई काम नहीं हुआ। ठीक। तो इसीलिए हमारा माइंड रिमोट होना चाहिए। तो इसीलिए हमारा आर्ट ऑफ लिविंग में ये सिखाया जाता है, डोंट बी फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, आप अच्छे करे बुरा करे लोग बोलेंगे, और लोगों के बोलने से अगर आप खुश हो जाएं, दुखी हो जाएं, तो फिर वो तो नहीं हुआ। बिल्कुल। तो इसीलिए आप जरूरी ये आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स जो अगर करेंगे जी, ना, जी, जी। तो आपको यही सीख है कि लोगों का सजेशंस लेनी है, अपने गलतियों से सीखनी है ना, इंट्रोस्पेक्ट करनी है, कहाँ पे कमी रहा, तो उस गलती को दोबारा ना दोहराए। और वो सब जैसे बोलते हैं, एक समस्या जब आती है ना, जी। वो 1000 समाधान लेके आता है। नॉट ओनली एक समस्या, मतलब एक समस्या है। जब हमको जीवन में कठिनाई होती है, तब हम क्या करते हैं, अलग अलग वे ढूंढते हैं कि इसका और क्या समाधान का रास्ता हो सकता जी, है। जी। तो वो समय में जो पेशेंस चाहिए, वो आर्ट ऑफ लिविंग देता है। बिल्कुल। तो ये गुरुजी हर महीने कोर्स होता है इसका? स्टूडेंट का क्या कोर्स है? हर महीना भी होता है। आपको जब टाइम है, मान लीजिए आप वीकेंड में टाइम निकाल सकते जी हैं, जी। हमारे अलग अलग सेंटर्स में आपका नियरेस्ट, सबसे बड़ी Nearest बात center। है कि आप जिस शहर में रहते हो, आप हमारे वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे सर्च ऑप्शन में आप टाइप करिए आपका लोकेशन, तो आपका नियरेस्ट जो लोकेशन है, अगर आप चाहते हैं कि जाके वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट रह के कोर्स करें, लेकिन अगर आज के टेक्नोलॉजी के एज में वो सब की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन में आप अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। उसके लिए आपको जब सूटेबल टाइम हो, जी जी तो आप हमारे वेबसाइट में जाके सर्च करिए, जी जी ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जी जी तो आप अपना कंफर्टेबल टाइम पे अपने घर में ही कर सकते हैं। जी क्योंकि कोविड के टाइम पे, आपको सबसे बड़ी बात है, आपको पता है कोविड के टाइम पे जब हम सब लोग घर में बंदी हो गए, एक तरह का इतने व्यस्त थे, घर में बंदी हो गए, तो स्ट्रेस लेवल और बढ़ गया। तो वो समय आर्ट ऑफ लिविंग के वर्कशॉप इतने अच्छे से लोगों का जो तनाव से बाहर निकालने का काम किया। तो गुरुदेव भी उस समय मेडिटेशन कराते थे, और अभी भी हमारा अभी नवरात्रि आ रहा है, 9 डेज मेडिटेशन चैलेंजेस है गुरुदेव के साथ। तो वो हमारे यूट्यूब में जो गुरुदेव का यूट्यूब पेज है, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, आप कोई भी ये करके
वो टाइम पे आप मेडिटेशन, और ऑनलाइन में हमारे बहुत सारे मेडिटेशन अवेलेबल है यूट्यूब में, गुरुदेव का इंस्टाग्राम में गुरुदेव, तो आप लोग कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। তো গুৰুজীৰ সাথে বাত करके बहुत अच्छा लगा। তো মই আপোনালোকে এটা কথা ক'ব বিচাৰিম, গুৰুজীয়ে এটা খুব ভাল কথা কৈছে শেষৰ পালে যে ছাকচেছ আৰু ফেইলিয়ৰ ঠিক মাজত হ'ব লাগে। আপুনি ছাকচেছ পালে এক্সাইটেড হ'ব নালাগে বা ফেইলিয়ৰ হোৱাৰ লগে লগে আপুনি ডিমোটিভেট হৈ যাব নালাগে। এইটো খুব ভাল কথা কৈছে গুৰুজীয়ে। আৰু এই চেণ্টাৰটো আশ্ৰমটো আছে আপোনালোকৰ বগৰীবাৰীত অৱস্থিত। যদি ধুবুৰী নিয়াৰেষ্ট বা বঙাইগাঁৱৰ ওচৰত কোনোবা থাকে তেনেহ'লে এইটো চেণ্টাৰত আহি গুৰুজীৰ লগত আপোনালোকে ছাজেশ্যন ল'ব পাৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চবোৰ গুৰুজীয়ে কৈছে যে ৱেবছাইটটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, ৱেবছাইটত আপোনালোকে গৈ নিয়াৰেষ্ট চেণ্টাৰটো ভিজিট কৰিব পাৰে। যদি ধুবুৰী বা বিলাচীপাৰাৰ কোনোবা আছে তেনেহ'লে বগৰীবাৰী আটানীত আহি গুৰুজীৰ লগত আপোনালোকে ছাজেশ্যন ল'ব পাৰে। তো এইখিনি কৈ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে এই প্ৰগ্ৰেমৰ কথা বা গুৰুজীৰ এই ভাল ভাল মটিভেশ্যনেল কথাবোৰ সকলোৱে জানিব পাৰে। আপোনালোকে যেতিয়া আৰ্ট অফ লিভিঙৰ লগত জড়িত হ'ব, মানে আৰ্ট অফ লিভিঙৰ প্ৰগ্ৰেমৰ লগত জড়িত হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ মাইণ্ডক পঢ়িব ক্ষমতা, ডেট মিনছ ৰিড কৰাৰ ক্ষমতা পাব। আপোনালোকে প্ৰগ্ৰেমত জড়িত হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক চাইলেঞ্চ থাকিব দিব এদিন আপোনালোকক প্ৰকৃতিৰ লগত, মানে নেচাৰৰ লগত কথা পাতিব দিব। তেতিয়া আপুনি নিজৰ মাইণ্ডক খুব ধুনীয়াকৈ পঢ়িব পাৰিব। ধন্যবাদ।